फैकल्टी का ये बोलना कि मेरी वजह से स्टूडेंट ने क्रैक किया एग्जाम, बिल्कुल सरासर गलत होता है। हम सही गाइडेंस दे पाए, सही कंटेंट दे पाए, और सही टाइम पे बच्चे को सपोर्ट कर पाए, मुझे लगता है कि ये तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एक मेंटोर, किसी भी एक फैकल्टी के लिए। बहुत अच्छी चीज बताई थी कि कीप द बॉल इन योर कोर्ट ड्यूरिंग द इंटरव्यू। तो जैसे कि आई आई हैड अ वर्क एक्सपीरियंस, आप बोले थे कि उसको हाईलाइट करने के लिए। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, whoever is watching this video, sir, I exactly follow your strategy and I got questions. All of those questions were from my work experience related. कि यार इतने कम वैकेंसीज हैं, 100 वैकेंसीज हैं, पिछले से पिछले साल 60 वैकेंसीज थे सर, हम कैसे करेंगे। कई बच्चे तो तैयारी ही नहीं करते। अब सिंस यू आर अ Correct, लाइव sir. एग्जाम्पल और आपने तो पहले अटेम्प्ट में क्रैक किया। So hello friends, with me I have Agniva Chakrabarti and he comes from Kolkata. Agniva has recently cracked the IBPS SO Marketing Mains Examination और अब सिलेक्टेड है। तो अग्निवा आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, sir. Thank you. और अग्निवा के संग सबसे खास बात यह है कि अग्निवा का ये पहला अटेम्प्ट था। तो ये तो मतलब बहुत कम वैकेंसीज निकले थे इस बार, और अग्निवा आपने पहली बार में ही अपना एक सीट सिक्योर कर लिया। तो इस जर्नी के बारे में जानेंगे आज आपकी, ठीक है। Sure, sir. तो अग्निवा शुरुआत करते हैं, आप अपने बैकग्राउंड के बारे में, अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में, फैमिली के बारे में थोड़ा बताएं हम सबको। Sure. तो सर जैसे आप ऑलरेडी मेंशन कर दिए, आई एम फ्रॉम कोलकाता. I've done my Bachelor of Commerce in Accounting and Finance from the University of Calcutta. और उसके बाद I pursued my MBA in Marketing. That was from Bangalore City University. After the completion of my MBA, I started working in various industries. Uh, my career was a mix up of various industries, like from FMCG retail to IT SaaS to pest control, hygiene management to EdTech. That eventually helped in my interview as well, as you suggested, sir. So uh, this is my educational and work experience, sir. I belong to a strong North Bengali family, and my family includes my father, who is a businessman, my mother, who is a homemaker, and I'm having a younger brother. He's studying in his, class 12 of his CBSE board. So that is all about me in brief, sir. तो हाउ डिड इट अकर टू यू, जैसे कि आपने बोला कि यू ऑलरेडी हैव एक्सपीरियंस वर्किंग विद डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट कंपनीज। सो हाउ डिड इट Yes, sir. अकर टू यू कि आपको आईबीपीएस एसओ का तैयारी करना है, मार्केटिंग ऑफिसर का। So, sir, joining a bank was a long drawn dream from for me. So previously also I applied to various private banks where I couldn't crack. Ultimately didn't get the offer letter. Then I thought कि अब निकालना है तो direct IBPS SO ही निकालना है. Since this exam is a very niche oriented, so we didn't know about the exam earlier. When I got to know, I thought ki this is my calling and I'm gonna start wholeheartedly and anyhow crack the exam. Or फिर eventually I got to know about your academy also, sir, from where I had a very detailed discussion with you over the phone. You told me every crux of the exam, all the ups and downs in the journey, and that clarified my whole perception about the exam. और फिर तो मैं पूरा तैयारी में लग गया कॉन्स्टेंटली। आपका जो गाइडेंस और माय मोटिवेशनल फैक्टर आल्सो वर्क very well with me, and then finally I'm here after cracking the exam, sir. तो आपने अपना जॉब के साथ साथ तैयारी करा है कि यू टुक अ ब्रेक एंड देन यू प्रिपेयर्ड। No, sir. So there was a break in my career. Though when I started preparing for the IBPS exam, I was working. I was working at a company named Intelimo. They are into IT SaaS based out of Gurgaon. Uh, तो मैं वहाँ पे BD as business development executive काम कर रहा था, and I had to balance in between my work and studies. तो फिर कैसे कोई एक्शन प्लान बनाया, कोई स्टडी प्लान बनाया, बिकॉज एसओ के एग्जाम्स में प्री और मेंस आर टू डिफरेंट बॉल गेम्स ऑल टुगेदर।
प्री का सिलेबस और करेक्ट। मेंस का सिलेबस कोई लेना देना नहीं है। तो हाउ डिड यू करेक्ट। फिगर आउट कि कैसे इसको करना है, मतलब प्री का स्ट्रैटेजी क्या था, मेंस का स्ट्रैटेजी क्या था, अगर बता सके स्टूडेंट्स को। श्योर सर। तो जैसे कि सारे एसओ एस्पिरेंट को पता है कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में उतना गैप नहीं रहता है सर। राइट, उतना दिन का कोई गैप नहीं रहता है। तो माय स्ट्रेटेजी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वाज कि प्रीलिम्स के साथ ही साथ मेंस का तैयारी मतलब एट द सेम पेस चले रहे। तो जैसे प्रीलिम्स के एग्जाम होता था हुआ था दिसंबर को, और मेंस एग्जाम हुआ था जनवरी एंड को। हार्डली 1 मंथ थे हमारे पास, विच वाज वेरी टफ टू कवर द एंटायर सिलेबस। और आप भी बहुत सारे यूट्यूब सेशंस या हम लोगों के कोर्स में बताए कि एक साथ ही प्रिपरेशन लेनी चाहिए, ताकि एक साथ उतना चंक ऑफ प्रेशर ना आ जाए आफ्टर क्लियरिंग द प्रीलिम्स। तो मेरा थॉट प्रोसेस यही था कि जैसे 8-10 घंटे का वर्क आवर्स होता था मेरा, every day at least 4 to 5 hours I dedicatedly gave to my preparation. उसमें सर I divided prelims preparation and mains separately. And जैसे कि प्रीलिम्स एग्जाम के पहले like before 1 or 2 weeks I completely invested my time in prelims. And when I cleared the exam, then सिर्फ एक ही गोल था कि सर मेंस में एज हाई एज पॉसिबल नंबर ले आना है, क्योंकि वही प्ले कर जाता है सर डिफरेंट, इट क्रिएट्स द होल डिफरेंस। तो आफ्टर क्लियरिंग प्रीलिम्स आई गेव like I devoted all my time to your course, your sessions, and I got the result. Like it's totally transparent to me now. तो मेंस का बात करते हैं। फॉर द मेंस एग्जामिनेशन द आस्क जी इज के सर। इट विल बी अ कंप्लीट सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जामिनेशन, प्रोफेशनल नॉलेज का करेक्ट। एग्जाम होता है। यू हैव गॉट करेक्ट। 45 minutes and 60 questions, right? So what करेक्ट। was your strategy to prepare for मेंस एग्जामिनेशन? किन रिसोर्सेज को आपने देखा, क्या आपने कोई स्टडी प्लान बनाया, क्या आपने कोई प्रोसेस फॉलो करा, क्या किया एग्जैक्टली exactly? थोड़ा डिटेल में अगर बता सके तो। श्योर सर। तो मेंस में सर जैसे आप बताए कि पूरा टेक्निकल नॉलेज आते हैं और 60 क्वेश्चंस रहते हैं। आउट ऑफ 45 minutes वी हैड टू कंप्लीट द एग्जाम। तो मेरा जो स्ट्रेटेजी था सर कि एक तो आई एम एन ऑफिशियल बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ जेसी एकेडमी। तो आई यूटिलाइज्ड ऑल द रिसोर्सेस ऑफ योर वेरी रिगोरसली। आई मीन बीट सर वीडियो कोर्स, आई डिडंट स्किप अ सिंगल वीडियो ऑफ योर कोर्स। और मॉक टेस्ट जो आप लेते थे वहां पे इजी बिगिनर लेवल वाला भी था, चैलेंजर्स मॉक भी था, वो सारे के सारे आई गेव होल हार्टेडली। और सर फिलिप कोटलर का जो बुक है मार्केटिंग मैनेजमेंट का, वो पूरा कवर किया। तो मेरा स्ट्रेटेजी सर वैसा था कि पहले मतलब इट वर्क विद मी वेरी वेल। आई डोंट नो कि विद अदर्स, आई थिंक विद अदर्स आल्सो दिस विल वर्क। कि सर पहले मैं एक बार फिलिप कोटलर रीड आउट कर लेता था वेरी बेसिक स्टेज पर। हो जाने के बाद सर वहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स वगैरह दिया रहता है, बट दोज आर ऑल फोकस्ड ऑन वेस्टर्न साइड ऑफ द अर्थ। तो फिर मैं आपके जो वीडियो कोर्स है वो देखता था बहुत अच्छे से। वहां पे आप लोकलाइज कर देते थे हर एक एग्जाम्पल के, तो जो मैं पढ़ा था फिलिप कोटलर के बुक में वो पूरा माइंड पे सेट हो जाता था। एंड वंस डन सर, मैं आपके मॉक जो चैप्टर वाइज मॉक अब बहुत क्यूरेटेड वे पे बनाए हैं, वो चैप्टर वाइज मॉक अटेम्प्ट करता था। फिर वहां पे देख लेता था कि मैं जो सीखा जो पढ़ा वो कितना यूटिलाइज कर पा रहा हूँ। और इन मोस्ट ऑफ द केसेस आई गॉट गुड नंबर्स, क्योंकि मेरा बेसिक्स और जो प्रैक्टिकल नो हाउ है, जो इम्प्लीकेशंस है, वो आप क्लियर कर दिए थे। तो विद दैट जैसे ही मेरा पूरा चैप्टर्स खत्म हो गया, हम लोगों के अराउंड 23 चैप्टर्स है इन मार्केटिंग सब्जेक्ट, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर। तो वो चैप्टर वाइज मॉक खत्म हो जाने के बाद सर आई started attempting easy to beginner level mock and then challengers mock, because that is the ultimate level. So this was my strategy sir. यू नो व्हाट, वन थिंग इज आल्सो आई वांट टू डिस्क्लोज टुडे। तो जब चैलेंजर मॉक्स हम लोगों ने पब्लिश करे, तो मॉक Sure. के ना सॉल्यूशंस नहीं थे।
अच्छा, हाँ। स्टूडेंट्स वांटेड मी टू कम अप विद रिटन आंसर्स फॉर द क्वेश्चंस। आई थॉट इसमें बहुत एफर्ट लग जाएगा बिकॉज आई हैड पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम आल्सो। और मुझे लगा कि मैं Correct, अगर सही आंसर बस लिख दूंगा और उसका एक्सप्लेनेशन भी लिख दूंगा तो वो पर्पस सॉल्व नहीं करेगा स्टूडेंट्स को। तो मैं क्या correct. करता था, मैं रात को पूरा काम निपटाने के बाद उन चैलेंजर मॉक्स का ना मैंने एक ऑडियो आंसर की बनाया, मतलब ऑडियो वीडियो आंसर की बनाया, ऑडियो वीडियो, यस सर, वो भी देखे जिसमें सर। स्लाइड पर क्वेश्चन चल रहा था और मैं फिर क्या करता था, मैं उस हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अपनी लैंग्वेज में रिकॉर्ड करता था, अपनी एक्सप्लेनेशन देता था Correct, और गलत आंसर भी समझाता था कि ये इसलिए नहीं है। तो मुझे लगा कि उससे फायदा ये हुआ कि बच्चों को एक तो समझ में आने लगा, रिलेटेबल हो गया कि व्हाई दिस इज नॉट द आंसर एंड व्हाई दिस इज द आंसर, बिकॉज इवन दो इफ आई एक्चुअली टाइप्ड द करेक्ट आंसर वो पर्पस उतना सॉल्व नहीं करते, क्योंकि बच्चों के पास टाइम बहुत कम होता है पता पकड़ने के लिए कि गलती क्या है इसमें। तो आई थिंक correct, दैट हैज correct, sir. वर्कड वेरी वेल, और मेरे को काफी सारे बच्चों ने बोला है कि सर वो जो इनोवेशन हुआ है उस दौरान Solution. उसका Truly, फायदा sir. हो गया। और आंसर्स Sir, के लिए actually, एज अ फैकल्टी मैं ना किसी पे रिलाई भी नहीं कर सकता, मैं नहीं बोल सकता कि तुम आंसर बना दो इसके या तुम आंसर बना दो इसके, क्योंकि correct. वो सोल है क्वेश्चन का। अगर मैं स्टूडेंट्स को यही नहीं समझा पाया कि आंसर क्यों है तो फिर वो मजा नहीं आएगा। तो Truly, दैट sir. थिंग दैट इज पेड Absolutely. ऑफ टू बोथ ऑफ अस। ट्रूली सर, एक्चुअली आई विविडली रिमेम्बर कि वो जो सॉल्यूशन वाला वीडियो ऑडियो आप देते थे, वो भी एक एक मतलब वीडियो 2 घंटे, 2:15 मतलब इतने ड्यूरेशन का होता था। तो जो वीडियो इतने ड्यूरेशन का होता है उसको रिकॉर्ड करने में कितना टाइम लगता है, वो तो वी ऑल मैं डिनर कैन करके आता था अंडरस्टैंड। रात को और फिर कोई टाइम नहीं होता था, कभी 1 बज रहा रात का, कभी 2 बज रहे हैं, बट आई यूज टू मेक श्योर कि एक दिन में मैं पूरा एक मॉक का तो निपटा कर ही जाऊं हर हाल में। करेक्ट, तो करेक्ट सर। 60 के 60 क्वेश्चंस को रिकॉर्ड करने के लिए फिर मैंने दो दो तीन तीन बार रिकॉर्ड करके फिर वो टीम को दिया, उन्होंने इकट्ठे करके दो दो वीडियोस में भेजा कि सर इसको 2 वीडियोस में डाल दें, 30 क्वेश्चन एक में, 30 क्वेश्चन एक में। मैंने कहा ऐसा कर लो, जी सर। कोई दिक्कत नहीं है। तो अग्निवा एक बात और आती है बात में, बिकॉज हर साल ये एक चैलेंज आता है मेरे लिए जब भी वैकेंसीज आती हैं, क्योंकि स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसीज मुट्ठी भर आती हैं, हैंडफुल ऑफ देम। करेक्ट, और मार्केटिंग करेक्ट, ऑफिसर, एचआर ऑफिसर के केसेस में तो कभी कभार बहुत ही कम आ जाती। ऐसे करेक्ट लास्ट ईयर सर। इट वाज 500 प्लस, दिस ईयर इट वाज 100, राइट? और बाद में 100, शायद 100। बढ़ी हैं कुछ वैकेंसीज बैंक ऑफ इंडिया की, इफ आई एम हाँ नॉट सर, इंडियन बैंक डिस्क्लोज किए थे ऑन दी वेरी डे, 1 अप्रैल, रॉन्ग। 25 वैकेंसीज एड ऑन हुए थे। तो इंडियन बैंक के ऐड ऑन हुए, राइट? तो स्टूडेंट्स करेक्ट। जैसे ही ये नोटिफिकेशन आता है सबसे पहला पैनिक बच्चों में रहता है कि यार इतने कम वैकेंसीज हैं, 100 वैकेंसीज हैं, पिछले से पिछले साल 60 वैकेंसीज थे, सर हम कैसे करेंगे? कई बच्चे तो तैयारी ही नहीं करते। अब सिंस यू आर अ करेक्ट लाइव सर। एग्जाम्पल और आपने तो पहले अटेम्प्ट में क्रैक किया डिस्पाइट द फैक्ट के 100 वैकेंसीज डिक्लेयर्ड, बाद में थोड़े बड़े। तो इस जी पे सर। आपका क्या टेक है? अगर वैकेंसीज कम हो या ज्यादा हो, उससे कितना इम्पैक्टेड होना चाहिए किसी का प्रिपरेशन? सर, ये लेके भी मेरा वो दिन पूरा क्लियरली याद आ जा रहा है, जैसे आप क्वेश्चन बोले कि मैं आपको ही कॉल किया था वैकेंसीज जब बहुत कम आए थे। तो आई आस्क कि सर, वैकेंसीज तो इतने कम हुए, एक्सपेक्टेशन था 535, उसके आसपास ही रेंज पे रहेंगे, प्रीवियसली जैसे 535 अराउंड था। तो यू सेड कि जो फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको लेके ध्यान ना देके, अगर जो फैक्टर हमारे कंट्रोल में है उस पे फोकस किया जाए, तो विल गेट दी वैल्यूएबल रिजल्ट। मैं वही सोचा। और आप भी बता दें कि जैसे मतलब वैकेंसीज कम भी हो, वहां से भी आपके प्रीवियस स्टूडेंट्स बहुत सारे क्रैक किए। लाइक लास्ट टू लास्ट ईयर जो था, 60 अराउंड वैकेंसीज था, वहां पे भी आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स, हमारे जो एल्यूमनाई है, वो सारे क्रैक किए। तो मेरा थॉट प्रोसेस पहले से वही था कि सर बस एक ही सीट तो ग्रैब करना है, और ऐसा नहीं कि मतलब अम, अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बहुत क्लियर हूँ, बेसिक मेरा स्ट्रांग है, तो अगर मेंस पे अच्छा मार्क्स खींच लूं मैं, तो इंटरव्यू उतना फैक्टर नहीं करेंगे और इवेंचुअली मैं फाइनल कट ऑफ भी रीच कर जाऊंगा। तो जो लोग मतलब वैकेंसीज लेके उतना टेंस्ड होते हैं कि वैकेंसीज बहुत कम है, एक फैक्टर तो सर वो काम कर जाता है कि जब वैकेंसीज कम है तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी कम हो जाते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के वही सेम चीज माइंड पे रहता है कि इस साल वैकेंसीज कम है, क्रैक नहीं होंगे। तो उस समय मोस्ट ऑफ द पीपल गो नेगेटिव। उस समय अगर हम थोड़ा बहुत सर पॉजिटिव माइंडसेट रख के डेडिकेटेडली प्रिपरेशन ले विद डिसिप्लिन, तो आई बिलीव कि क्रैक हो जाता है। मैं भी बहुत एवरेज बैकग्राउंड से आया हूँ, जिंदगी में कभी टॉपर नहीं बना सर एग्जाम, स्कूल्स या कॉलेज में।
तो if I can crack this exam, anybody can do it. यू राइट बस वही बिकॉज क्लियर। तो सर वही कि ऐसा नहीं कि मतलब आपको सारे लोगों के साथ compete करना है। बस खुद में आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग रख के, क्लियर रख के एग्जाम देके जितना मार्क्स हो सके आपके जो एरिया में है, जो आपके कंट्रोल में है, उसको पूरा यूटिलाइज करनी है। तो उससे इवेंचुअली एग्जाम भी क्रैक हो जाते हैं सर। आपको मैं एक फैक्ट और बताता हूँ। आई मीन मतलब मेरे लिए तो बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि आईबीपीएस में रैंक का तो नहीं पता लगता, राइट? जी सर। अब मैं ये तो नहीं बोल सकता कि फर्स्ट रैंकर मेरे से पढ़ा है या सेकंड रैंकर मेरे से पढ़ा है। मुझे लगता है जी कि किसी भी एक फैकल्टी का ये बोलना कि मेरी वजह से स्टूडेंट ने क्रैक किया एग्जाम, बिल्कुल सरासर गलत होता है। हम सही गाइडेंस दे पाए, सही कंटेंट दे पाए, और सही टाइम पे बच्चे को सपोर्ट कर पाए, मुझे लगता है कि ये तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एक मेंटोर, किसी भी एक फैकल्टी के लिए। एंड आई एम रियली करेक्ट। थैंकफुल टू गॉड एंड टू माई स्टूडेंट्स ऑल्सो कि एवरी ईयर of the total vacancies coming in the IBPS for the last 6 7 years, 40 to 45% are my, somehow they are my students. तो मुझे बस ये दैट इज लगता है ट्रू कि सर। रैंक से मुझे मतलब नहीं है, मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हेल्प कर सकूं। मेरा थॉट सिलेक्शन प्रोसेस दे है कि सर। इस साल भी आप देखो 100 वैकेंसीज इनिशियली आए थे, और अभी तक हमारे पास 35 36 स्टूडेंट्स का डेटा इकट्ठा हो गया है। यानी कि इतने तो हाँ सर, हमसे आप शेयर भी किए थे सर थ्रू ही हो गए। ये चीज। थोड़े बहुत और जी। होंगे जिनको नहीं पता लगा होगा, जो आलस कर गए, खैर वो तो हमेशा ही होता है, बट खुशी की बात होती है कि एटलीस्ट हम एक इम्पैक्ट पहुंचा रहे हैं स्टूडेंट्स की तरफ। तो मेरे लिए करेक्ट। सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है। तो मैंने तो अपने करेक्ट। मोटिवेशन का बताया, आपका क्या मोटिवेशन था तैयारी करने का? सर मेनली तो मोटिवेशन एक चीज था कि बैंकिंग इंडस्ट्री में घुसना है, क्योंकि सिंस दिस इंडस्ट्री इज वेरी स्टेबल और एक ब्राइट मतलब प्रोस्पेक्ट देता है फॉर अ स्टेबल करियर। तो मेरा जैसे बहुत सारे फ्रेंड है जो प्राइवेट बैंक में या पब्लिक सेक्टर बैंक में भी काम कर रहे हैं। तो आई ट्राई टू सीक हेल्प फ्रॉम देम एज वेल समटाइम्स कि प्राइवेट में अगर कोई जॉब वगैरह है तो देखो, ट्राई टू गिव सम रिकमेंडेशंस। अल्टीमेटली दैट डिडंट वर्क वेल। और आई वाज फीलिंग कि समथिंग इज लैकिंग इन मी, कि बैंकिंग इंडस्ट्री इज नॉट एक्सेप्टिंग। देन जैसे मतलब आईबीपीएस एसओ के बारे में सोचा कि वहां पे तो और कोई रिजेक्शन करने के मौका नहीं है अगर कट ऑफ रीच कर जाए। तो I that was my one motivational factor. Second is Lord Shiva sir. I'm a devotee of him. So throughout my journey, I believe consciously or subconsciously he helped me, you know, being on the track. And definitely sir, आपका जो सेशंस हुआ था बिफोर इंटरव्यू, बिफोर मॉक्स, हमारे जो टेंस्ड डेज होते थे, उसके पहले आप बहुत अच्छी तरीके से प्रोफिशिएंट वे में हम लोगों को मतलब गाइड किए कि बी काम, ट्राई टू फोकस ऑन द फर्स्ट अप्रैल डे। सर which I thought like a dream has eventually come, and by the grace of God, finally I'm living this day. अभी तो बहुत कुछ आएगा दोस्त, अभी वी हैव अ लॉन्ग जर्नी टू गो, अभी तो दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग, राइट? अच्छा अग्निवा, Definitely. आपने अच्छी तरीके से बताया कि मेंस का तैयारी आपने कैसी किया वंस। अच्छा मेरे को ये बताओ, कट ऑफ के बारे में बता दो जरा। तो कट हाँ ऑफ सर। कितना आया था इंटरव्यू के लिए, और आपका मार्क्स कितना आया? इंटरव्यू के लिए आया था 22.75, इफ आई एम ओके, नॉट रॉन्ग, फॉर जनरल, सिंस आई एम फ्रॉम जनरल सर। ठीक है, हाँ। और मेरा जो ऑब्टेन्ड स्कोर आया था वो था 35.5। हाँ तो आपने तो सब्सटेंशियली हाई, मतलब अच्छा खासा आपने करा ग्रेन। करेक्ट, करेक्ट सर। तो ये तो हो गया कि एक कंफर्टेबल मार्जिन हमको मिल गया था रिटन एग्जाम के ही बाद, मतलब मेंस के बाद। उसके बाद जब इंटरव्यू का तैयारी किया तो उसका आप भी कुछ बताएं, जर्नी, इंटरव्यू का जर्नी, क्योंकि इंटरव्यू की तैयारी भी श्योर। हमने साथ ही में करी है, तो उसकी भी मैं बात तो कर ही एग्जैक्टली। सकता हूँ। डेफिनेटली, डेफिनेटली सर। like you deserve every inch of my success sir, and definitely that is true. तो क्या हुआ था कि सर जैसे इंटरव्यू के पहले आप जनरल अवेयरनेस के भी सेशंस लिए थे विद द हेल्प ऑफ अनदर फैकल्टी फ्रॉम योर टीम। प्रशांत सर थे, उन्होंने लिए थे कुछ प्रशांत सेशन। सर थे सर, करेक्ट। सर का सेशंस भी बहुत इफेक्टिव था सर, करंट अफेयर्स के बारे में और कैसे कहाँ से डेटा फेच करना है उसके बारे में वो बहुत अच्छे से गाइड किए। एंड द फाइनल पार्ट वाज
द मेन थिंग कि इंटरव्यू, जो मॉक इंटरव्यू वो कैसे मतलब करना है। तो आप एक क्लासरूम इंटरव्यू लिए थे, एक पर्सनल इंटरव्यू भी लिए थे। तो क्लासरूम इंटरव्यू में जो था कि वी वर एबल टू सी अदर्स परफॉर्मेंस एज वेल along with our own performance। तो वहां पे क्या हुआ था कि सर मैं जब क्लासरूम इंटरव्यू पे बैठा था, आई वॉज विद अनदर एक्सेल शीट ओपन। वहां पे आप जितने क्वेश्चंस पूछ रहे थे दूसरे लोगों को, आई वॉज ओके। कॉन्स्टेंटली टाइपिंग। ओके। तो उससे क्या हुआ था कि सर आई हैड अ बंच ऑफ क्वेश्चन विद मी, आई सेव दैट फाइल। तो इवन दो यू डिडंट आस्क मी दोस क्वेश्चंस वर विद मी, ताकि और उसका आंसर भी मैं बाद में सर गूगल से या आपके थ्रू वो आंसर बना लिया था। तो दिस हेल्प मी वेल। एंड जैसे वन ऑन वन इंटरव्यू हुआ था वहां पे, तो आप मेरे हर एक फ्लॉज को हाईलाइट किए थे एज अ टीचर। वो तो मतलब बहुत एफिशिएंटली आप करते हैं सर, थोड़ा जेस्चर पॉस्चर में सर, फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर लाइक ओके, ऑफ योर थैंक यू। स्टूडेंट्स। डेफिनेटली सर, क्योंकि आप अगर फ्लॉस हाईलाइट नहीं करेंगे तो अगर इंटरव्यूअर कर दे तो दैट विल बी अ मैसेकर ना। तो सही बात। फिर सर जैसे वन ऑन वन इंटरव्यू पे आप गुड पॉइंट्स भी हाईलाइट किए थे, फ्लॉज भी हाईलाइट किए थे, एंड आई वर्क ऑन दोस। एंड इवेंचुअली जैसे कि आप एक बहुत अच्छी चीज बताई थी कि कीप द बॉल इन योर कोर्ट ड्यूरिंग द इंटरव्यू। तो जैसे कि आई आई हैड अ वर्क एक्सपीरियंस, आप बोले थे कि उसको हाईलाइट करने के लिए। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, whoever is watching this video sir, I exactly follow your strategy and I got questions. All of those questions were from my work experience related, and I didn't face any kind of struggle in answering those, क्योंकि सर मैं वो लाइफ एक्चुअल में जी के जो आया हुआ पढ़ा है। है उससे ज्यादा जो खुद किया है ना, उसके बारे में आप हमेशा ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होगे। करेक्ट सर, करेक्ट। तो उस हिसाब से दे डिडंट आस्क मी क्वेश्चंस रिलेटेड टू रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, नथिंग एज सच। दे ओनली आस्क मी अबाउट व्हाट यू डिड इन योर प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन। And I comfortably cleared that interview round as well, and eventually the final cutoff। सो व्हाट वाज द स्कोर इन द इंटरव्यू? इंटरव्यू में कितना स्कोर किया आप? जो मैं देखा था सर, इट वाज 14 आई गेस। नॉट एक्सेप्शनली वेल, बट इट वाज लाइक comfortable to crack the final तो अब तो बन गए मार्केटिंग ऑफिसर, कौन सा बैंक मिला है आपको? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में था सर। तो फिर अब क्या, व्हाट इज द प्लान्स अहेड? क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? फैमिली वाले क्या बोल रहे हैं? खुश हैं? हाउ आर दे लुकिंग फॉरवर्ड फैमिली टू वाले दिस? तो सर दे आर ओवर द मून, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और आई एम ग्लैड कि आई मेक देम प्राउड सर। एंड अभी तो बस ज्वाइनिंग की मतलब वेटिंग चल रहा है। आई एम ईगर टू ज्वाइन। क्या टिप्स देना चाहोगे अपकमिंग एस्पिरेंट्स को, जो बच्चे नई तैयारी कर रहे हैं, जो अभी जुड़ना चाहते हैं, या जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं? काफी सारे बच्चे ऐसे भी ढूंढते हुए आएंगे कि तैयारी कैसे करें, और वैकेंसीज कम आती हैं तो क्या स्ट्रैटेजी चेंज करनी है, तो उनके लिए कुछ टिप्स अगर आप देना चाहें तो। डेफिनेटली सर। तो पहली बात तो वैकेंसीज लेके उतना वरीड मत होनी चाहिए। जो भी कम वैकेंसीज है उसमें भी लोगों को जॉब मिल रहा है। एंड सम एक्सटर्नल फैक्टर्स आर प्रेडिक्टिंग कि इस साल वैकेंसीज कंपेरेटिवली ज्यादा आएंगे, बट आई एम वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट सर। जो फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में है, जैसे पहले भी मेंशन किया, उस पे फोकस करनी चाहिए। जो प्रिपरेशन बेसिक स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए हर एक टॉपिक के बारे में, एक विद प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लोगों को समझनी चाहिए चीजों को, ताकि वो प्रॉपर अच्छे से माइंड पे मतलब एकदम स्टिक हो जाए। और फॉर marketing officer preparation, ASO marketing, definitely the most sought site is JC Academy, search on Adobe। तो आई वुड सजेस्ट कि वहाँ पे पूरा प्रिपरेशन ले। वहाँ पे जो भी कंटेंट सर दिए हैं, दोज आर सफिशिएंट इनफ टू क्रैक द एग्जाम। हमारे मतलब आप वीडियो कोर्स या फिर जो मॉक सीरीज होते हैं, वो सारे प्रॉपरली यूटिलाइज करे हर एक स्टूडेंट्स। एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट ऑन सौरभ सर। डेफिनेटली he's the ultimate guide, I mean help you properly to crack the exam. And this is not like a rocket science. If we um,
if we keep our inputs straight, our outcome will also come very handy. तो जनरली मेरे यही को मेरा लगता है सलाह होगी। स्टूडेंट्स ना पैनिक कर जाते हैं एंड दे ट्राई टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स एट द सेम टाइम। अगर आपके पास एक अच्छी किताब, एक अच्छा जी, गाइड जिसको भी आप बिलीव करते हो, जिसका कंटेंट और एग्जैक्टली क्वालिटी अच्छा हो, और एक अच्छा डिटर्मिनेशन अगर आपके पास हो, तो आई थिंक यू हैव अ गुड कॉम्बिनेशन, यू डोंट नीड एनीथिंग एक्स्ट्रा। एग्जैक्टली सर, लाइक मल्टीपल रिसोर्सेस, मतलब बहुत सारे लोग मुझे रीच आउट भी किए। तो दे सेड कि आप कितने बुक्स पढ़े थे, तो वाई सेड कि सिर्फ एक वीडियो कोर्स जो सर के है, मॉक टेस्ट, और एक ही बुक बस, फिलिप कोटलर, दैट वाज मोर देन इनफ टू क्रैक। जी सर जी, चलो, यही चीज थैंक है, यू यही सो मैटर मच है। having coming over on a Sunday and sharing your experience with me, and I will इट make वाज sure माय एब्सोल्यूट प्लेजर सर, एब्सोल्यूट प्लेजर, आई वाज वेटिंग फॉर दिस सेशन। ओके। अभी तो सारे बच्चों से, काफी सारे बच्चों से एक एक करके हर वीकेंड पे या हर 5-6 दिन में इंटरेक्शन करेंगे, सबके पर्सपेक्टिव समझेंगे। एंड विश यू जी ऑल द सर, वेरी बेस्ट एंड बेस्ट थैंक विशेस यू। फॉर द फ्यूचर। और मेरी तरफ से अपने पेरेंट्स को हेलो बोलना, नमस्ते बोलना और कंग्रेचुलेशंस देना। डेफिनेटली और सर, मेरे हिस्से की दे आर टॉफी आप ग्रेटफुल। मिठाई खिला देना किसी को घर में, मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है।